tail, it helps the sperm to move and reach the egg. तो ये लिखने का we got how many marks? 2. Half mark we got to write acrosome, half for writing about tail, then half mark for function of tail and half mark for function of acrosome. So very easy ना, उसमें डायग्राम बनाना नहीं था, printed. ठीक है? Is that clear? Somebody is asking the difference between that tail. Class understand करो. यहाँ पे एक फिलामेंट है, ओके, और उसके ऊपर कवरिंग है, ठीक है, बट पूरा फिलामेंट कवर नहीं होता. तो जो कवर नहीं होता, करेक्ट, दैट इज द एंड पीस, और जो कवर्ड है वो मेन पीस. ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट इज द एंड पीस, और जो कवर्ड नहीं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? दी मेन पीस. है पूरा टेल ही. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस. बीच में उसके क्या पास हो रहा है? एक्शियल फिलामेंट. एक्शियल फिलामेंट. फाइन. अब आ गए हम फर्टिलाइजेशन. दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, द मेजर टॉपिक, fertilization. So what are we going to see? You can see so many sperms approaching the egg, correct? And we know only one will fertilize it. So let's look at the process. How does this egg selects the sperm? Or is it like who reaches first? And what happens? What is the whole procedure? So let's look at it. Fertilization, which is also known as syngamy. What is another name? Syngamy. Sym means to fuse. Okay. So what is it? Fusion of male and female gamete to form the zygote. What is fertilization? Fusion of male and female gamete to form the zygote is known as syngamy or fertilization. But we also know the male gamete is haploid. The female gamete is also haploid. So haploid plus haploid will become diploid. That means N plus N, 2N. Can I write 23 plus 23 is equal to 46 chromosome? So we come back to normal. Gametes are half, correct? So they are not absolutely normal cells. There is some less, na? Half chromosome come hai uske. So if you want a zygote, it should be perfect. So that diploid zygote is formed because of fertilization. Okay? In human, the process is internal. Means the egg is not laid outside. The egg is inside the body and sperm has to reach the egg. Kahan? You have to reach the fallopian tube. Which part? The ampulla. The ampulla. Let's look at the fallopian tube once more. ये देखिए, ऐसा था fallopian tube. Correct? ये हमारा egg है. Just draw it. ये egg इधर wait कर रहा है. किधर wait कर रहा है? This is ampulla. And the sperm has to reach there. The sperm has to come and reach there. So if it reaches, fertilization takes place in the ampulla. Please by heart. MCQ. अगर ampulla नहीं दिया तो then they will give you fallopian tube or the oviduct. Correct? Oviduct. ठीक है? अगर दोनों दिया तो हम आंसर क्या लेंगे? MCQ में ampulla. You have to go to the more perfect answer. You have to go to the more perfect answer. ठीक है? Fine. This fertilized egg, which now is known as zygote, will develop into an embryo, and this all will take place in the uterus. ठीक है? तो हम अब uterus में जाएंगे और fertilization के बाद क्या होगा वो देखिए. So let's look at class. What is released by the male? Sperm. But is it only sperm? No. We know उसमें बहुत सारा fluid है, correct? That fluid is known as semen. So this semen, this fluid containing lots of sperm, sperms are floating in it. This is in the vaginal tract. Now this becomes
thick, it is coagulated. Matlab, it is gel-like, it has become thick. It starts becoming liquid. Look at this word, liquefaction. And because of that, these sperms, they become active. See, the coagulated semen undergoes liquefaction and the sperm becomes active. Where? In the female reproductive tract, in the vaginal tract. This is going to happen. Okay? Now the sperm will start moving towards the egg. When it will start moving in the tract only, there will be one very important event occurring, which is known as capacitation. The capacitation of sperm, the first step which is occurring now. 50% of the released sperms are destroyed, they are broken, they are dead, they cannot move. So 50% dead. But we are left with how much? 50%. The rest 50% will undergo capacitation. They will undergo capacitation. Okay? Are you getting it? What is capacitation? So class, capacitation is a reaction in which the sperm gets ready. It is getting prepared for fertilization. It takes around 5 to 6 hours to get capacitized. What happens? This acrosome, याद है acrosome? इधर था हमने बनाया. The membrane becomes thin. Calcium enters inside. Okay, and the tail of the sperm starts moving rapidly. You can see rapid whiplash. Whiplash is like this. It starts moving, whiplash movement. क्या क्या हुआ? Membrane has become thin. It is changing, giving entry to various ions. उसमें सबसे important है calcium. The sperm tail begins to show whiplash movement. देखिए, see the diagram. डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन. तो आप ध्यान से देखिए, ये मेल बॉडी में स्पर्म है, देखो एपिडिडिमिस, ठीक है, वो मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया. देखिए इजैकुलेटेड मतलब रिलीज, बट रिलीज होते होते वो काफी मैच्योर हुआ है. देखिए ये एक्रोसोम के ऊपर लेयर दिख रहा है, स्पेशल लेयर. अब कैपेसिटेशन में ये लेयर देखिए थिन हो रहा है, निकल गया ना वो बैरियर. देखिए अभी है क्या बैरियर? नहीं. अब कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं और स्पर्म की टेल एक्टिवेट हो रही. दिस इज कैपेसिटेशन. मतलब स्पर्म क्या हो रहा है? रेडी, तैयार, विथ फुल एनर्जी. करेक्ट? गॉट कैपेसिटेशन. डायग्राम नहीं है क्लास, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट एक वर्ड्स है ये सब, ठीक है. सो लेट्स लुक अहेड. ये देखो, because of capacitation sperm becomes extra active. ओके, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन थिन हो गई है, वो बर्स्ट हो सकता है, so it becomes very active and so it moves from vagina to the uterus to the oviduct. Let's look at this. Vagina to the uterus to the oviduct. इधर आना पड़ेगा, यहाँ पे इधर एम्प्यूला है. करेक्ट? सो इट विल हैव टू ट्रैवल. ठीक है, स्पीड देखो उसकी कितनी है, 1.5 to 3 mm per minute. ये स्पीड से स्पर्म एवरेज में ट्रैवल कर रहा है. नाउ टू हेल्प इट इन मूविंग, टेल इज ऑलरेडी वर्किंग, प्लस हु इज वर्किंग? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वेस्टिबुलर सिक्रीशन. कुछ याद आया? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड ने बहुत सारा फ्लूइड दिया था, इजंट इट? तो वो सब उसको एक्टिवेट कर रहे हैं and they help in becoming more and more motile and sperm reaches ampulla. एक बार कैपेसिटेशन हो गया तो 5 मिनट में sperm ampulla पहुंचे, 5 minutes it reaches the ampulla. What happens? वहाँ fertilization होने वाला है. तो वो कैसे पहुंचा ampulla? By swimming, yes, and uterus का wall keeps on contracting. It is muscular. It keeps on contracting and that pushes the sperm ahead.
uterine wall, fallopian tube. They contract. Okay, I'll just read your chat. Just give me a minute. Correct? So sperm reaches the ampulla. Sperm will remain there viable. Viable matlab alive, active. For how much time? Best is 24 hours. अगर बहुत हमने pull किया तो 48. Can I write 2 days? What is the best day for fertilization? First only. You have to work in 24 hours. But बहुत और पुल किया तो कितना सर्वाइव कर सकता स्पर्म? 2 दिन 48. और ओवम रिलीज होने के बाद कितना सर्वाइव कर रहा है? खाली 1 दिन 24 आवर. तो सोचो यहाँ पे ओवम होना चाहिए और यहाँ पे स्पर्म. ये टाइमिंग मैच होना कितना जरूरी. स्पर्म आया 2 दिन वेट किया, एग नहीं है, वेस्ट. एग आया 1 दिन वेट किया, स्पर्म नहीं है, वेस्ट. इजंट इट? तो काफी इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग मैच हो. ठीक है? इज दैट क्लियर? यस. See, now how will the sperm enter the egg? Just a minute, I'll read the chat. Somebody was asking. How the sperm will come to know that egg is in the left ovary or the right ovary? It will never come to know. It just keeps on moving. It's many sperms will go to the left. वहाँ पे कोई egg नहीं है, they are waste. Many will go to the right. It's just a chance. Okay? Sperm को नहीं मालूम. It is equally getting attracted towards both the sides. ठीक है? तो sperm इसीलिए तो millions बनाने पड़ रहे हैं ना. Are you getting? बहुत सारे इधर जाएंगे, बहुत सारे इधर जाएंगे. जो यहाँ गए वेस्ट हो गए अगर एग इधर है. ठीक है? और वो भी हमें पता है कि वो अल्टरनेट है, एक बार इधर एक बार इधर, है ना. स्पर्म को नहीं पता, विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल. ठीक है? So it will just move, it will just run. You know, it's like a race. You have to run. ठीक है? अब रन करना है और हमें पता है कि ये 2 रोड में से एक रोड पे एग मिलेगा. अब आपका डेस्टिनी, आपका लक. मतलब आप सोचिए क्लास, आप, मैं, हम सब कितना यूनिक कॉम्बिनेशन है ना. एग भी है, स्पर्म भी है, वो फ्यूज हुआ होगा, जाइगोट बना, तब हम बचे ना. इट इज ऑल्सो यूनिक. अब वन पर्टिकुलर स्पर्म आउट ऑफ मिलियंस. करेक्ट? कितने सारे एग मदर के बॉडी में डेवलप हो रहे थे, फिर एक ही बना और वो सबसे हम बने. सो इट इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ द बॉडी. ठीक है? इज इट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. लेट्स सी हाउ विल द स्पर्म एंटर द एग. अब आ गए आप एम्प्यूला में, एग भी सामने है, तो डायरेक्ट वेलकम एंट्री नहीं है, आपको एफर्ट कर. सो आउट ऑफ 200 to 400 million sperm, only few hundreds will reach the ampulla. फिर भी hundreds will reach. एक नहीं पहुंच रहा है, hundreds will reach. But only a single sperm fertilizes the ovum. वो रूल है. ठीक है? एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर सकता है. कैसे? So let's look at, sorry class, 1 minute. Corona ये ovum and sperm are lined against each other. देखिए एकदम. ठीक है? The acrosome releases hyaluronidase. ठीक है? And corona penetrating enzymes which are also called lysins. So they release it. तो करोना में डायग्राम दिखा रही हूँ, उसके पीछे ही है. वो डिसॉल्व हो जाएगा. कौन डिसॉल्व हो जाएगा? करोना रेडिएटा. ठीक है? तो वो फ्री हो जाएगा. स्पर्म उसको पास करके कहाँ पहुंच जाएगा? जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा को कौन डिसॉल्व करने वाला है? हाइल्यूरोनिडेज. ठीक है? लेट्स लुक एट इट. ये हमारा एक था.
करेक्ट, ये आपकी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये आपका एग रुका हुआ है मेटाफेज में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन सी कोरोना रेडिएटर थोड़ा फ्री हो गया, तो एक स्पर्म, दो स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म उधर आए, करेक्ट। दे हैव रिलीज विच एंजाइम, द कोरोना रेडिएटर डिसॉल्विंग एंजाइम, ठीक है। तो ये देखो, ये स्पर्म अंदर जा, इसको एंट्री मिल गई, पर अंदर और एक मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, करेंगे। तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ और ये स्पर्म अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये बहुत फास्ट दिखा हमने, अभी ठीक से देखते हैं। एक्ट्रोसोमल एंजाइम्स दे क्रिएट गैप इन कोरोना रेडिएटर, पीछे पढ़िए, ठीक है। सिंगल स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद द एग मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे देखिए कांटेक्ट, ठीक है। यस, इट विल एक्टिवेट द एग, अब एक्टिवेट हो गया और उसने बना दी दो पोलर बॉडी, देखो पहले वाले डायग्राम में एक ही थी, मतलब दिस सेकेंडरी oocyte has become ovum, the secondary oocyte has become ovum, it has completed meiosis। क्लास ये और ये डायग्राम का डिफरेंस देखिए, you will realize, ठीक क्लास। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, देखिए, है ना, मेटाफेज में अटका हुआ है और एक ही पोलर बॉडी, जैसे स्पर्म अंदर जाता है दो पोलर बॉडी, मेटाफेज कंप्लीट हो गया, एग का न्यूक्लियस एकदम तैयार है, ठीक है। जब वो रेडी है तो क्या होगा, ये देखिए, अब ये एग न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस, और अब देखिए कोरोना दिख रहा है आपको, रेडिएटर नहीं, वो चला गया और ये फ्यूज हो जाएगा, करेक्ट। ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, देखिए दोनों साथ में आ गए, स्पर्म उसको क्या देगा, सेंट्रियोल, ये देखिए चालू हो गया सेल डिवीजन, सी, यू कैन सी द स्पिंडल फाइबर्स, ये दो सेंट्रियोल आ गया ना, एक के पास तो एक भी नहीं था, किसने दिया दोनों सेंट्रियोल, स्पर्म ने, करेक्ट। ये मेल का न्यूक्लियस, ये फीमेल का, ये 23 क्रोमोसोम, ये 20, गेटिंग इट, वो दोनों साइड साइड में आ गए, ये देखिए अब ये बन गया स्ट्रक्चर, मिक्सिंग हो गई क्रोमोसोम्स की, टोटल 46 हो गया एंड वी हैव द जाइगोट रेडी, ऐसा होता है। पर ये और डिटेल में देखना हम, ये देखिए, द जोना पेल्यूसिडा हैज ZP, जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर प्रोटीन, zona pellucida receptor protein known as the fertilizing, okay, the fertilizing, ठीक है। और स्पर्म के पास है एंटी फर्टिलाइजिंग, देखिए स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग, आई रिपीट, एग के पास क्या है, फर्टिलाइजिंग एंजाइम है, प्रोटीन, और स्पर्म के पास है एंटी फर्टिलाइजिंग, ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं केमिकली। सपोज ये एग है और मैंने यहाँ पे स्पर्म भेजा है रैट से और ये ह्यूमन है, तो उसका फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कोई भी एग, कोई भी स्पर्म नहीं, इट इज ह्यूमन एग, ह्यूमन स्पर्म, okay, so fertilizing and anti-fertilizing interaction is species specific, species specific है वो, ठीक है। so that attracts each other and sperm comes to the egg for fertilization, ठीक है। अभी भी fertilize हुआ नहीं है, आ रहा, ठीक है। आप देखिए वही डायग्राम दिख रहा है जो फर्स्ट वाला था, सी, the capacitated sperm releases enzyme to penetrate the egg, yes, release होने लग गई, देखिए लूज होने लग गया, तो कौन लूज हो रहा है,
कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएट, ठीक है। अब देखिए जब वो लूज हो गया, देखो पूरा कोरोना खुल गया, दिखाई दे रहा है आपको। अब स्पर्म पहुंच गया, ये येलो मेम्ब्रेन का नाम है जोना पेल्यूसिडा। इज इट टचिंग इट? यस, सो इट रिलीजेस केमिकल्स। विच केमिकल? हाइल्यूरोनिडेज, इसीलिए नाम है एक्रोसोम रिएक्शन। हाइल्यूरोनिडेज रिलीज हो गया, देखो केमिकल दिख रहा है आपको। यस, अब जैसे ही केमिकल डालेंगे जोना पेल्यूसिडा खुल जाएगा, तो स्पर्म को मिल गई एंट्री। यू कैन सी द एंट्री, यस, एंड द स्पर्म and the egg will fuse. See the cytoplasm. The cytoplasm has fused. दिख रहा है? See carefully. Yes. ये पूरे रिएक्शन को आप इस सीक्वेंस में एक बार ध्यान से देखिए। See the cycle. 1 2 3 4. Please see it. टेक्स्ट बुक में हेडिंग है एक्रोसोमल रिएक्शन, डायग्राम नहीं है। डायग्राम एक दिया है पर बहुत ही बुरा सा दिया है। यस, आई एम जस्ट रीडिंग इट। ये चार्ट ग्रुप में भेज दो। ओके फाइन। एनिमल और ह्यूमन मिक्सअप हो सकते थे क्या? या हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है हर बार नहीं, मतलब प्लस कहीं ना कहीं तो मिक्सिंग हुई है ना। हम मंकी एप मैन जो बने तो कहीं ना कहीं ये स्पीशीज वो स्पीशीज, बट इट्स नॉट इजी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इट्स नॉट इजी, यू कैन बी इजीली रिजेक्टेड। मतलब ये वैसी बात हो गई कि रोज के ऊपर सनफ्लावर का पोलन ग्रेन अगर हम डाल दें तो क्या वी विल गेट अ न्यू प्लांट? मुश्किल है। अगर होता तो बहुत हो गया होता ऐसा ना, पर जरा मुश्किल काम, ठीक है। मतलब बॉडी इतनी जल्दी रेडी नहीं होती, क्योंकि रिप्रोडक्शन से आपको न्यू जनरेशन बनानी, उसमें कुछ खराबी हो गई, कुछ अलग बन गया, कुछ और बन गया तो क्या होगा? तो बॉडी रिस्क नहीं लेती जल्दी, ठीक है। हाँ, हम लोग ह्यूमन बीइंग बायोटेक्नोलॉजी से इसको उससे फ्यूज, उसको इससे फ्यूज करते रहते हैं, वो सब चलता है। आपको पता है ना, हमने लायन और टाइगर को फ्यूज करके क्या बनाया? लाइगर, करेक्ट। तो लाइगर किसका ब्रीड है? लायन और टाइगर दोनों के जैसे दिखता है, दोनों के उसके प्रॉपर्टीज हैं, पर हमने किया वो लायन और टाइगर मेट नहीं करते, और मेट करेंगे तो भी एक्रोसोमल रिएक्शन फेल हो जाता है, समझे आप? हमने आर्टिफिशियली, गेटिंग इट? हमने जेब्रा और डोंकी को फ्यूज किया एंड वी गॉट डेब्रा, करेक्ट। ये सब होता है, पर वो आपको बायोटेक्निकल हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल केमिकल ढूंढने पड़ेंगे जिससे वो एक्सेप्ट हो, वो सब होता है, ठीक है क्लास? फाइन, ओके। Look, let's read the acrosomal reaction. What is it happening? Correct? किसने कुछ बड़ा सा क्वेश्चन डाला? Let me read. If copulation takes place during ovulatory phase, then will the sperm be alive? Since there are 14 days to form secondary oocyte. No. Secondary oocyte form हो गया। ओव्यूलेटरी फेज में आप क्या रिलीज करते हो? सेकेंडरी oocyte. It will remain there, but secondary oocyte is also going to live for 2 days only. So this is the best phase for copulation. The best phase is the ovulatory phase. You can call it as a target date. Those couples which are trying fertilization, they are supposed to try it on the ovulatory day. ठीक है? ओव्यूलेशन में क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte के पास ही स्पर्म आ रहा है, पर जैसे ही वो उसको टच करेगा वो ओवम बन जाए, ऐसा। अभी आपको डायग्राम में भी दिखेगा, ठीक है। Now let's look at it.
द स्पर्म हेड टचेस द जोना पेल्यूसिडा, आपने देखा ऑलरेडी, ठीक है। कहाँ पे? एनिमल पोल। व्हाट इज एनिमल पोल? जिस तरफ एग का न्यूक्लियस है उसको एनिमल पोल बोलते हैं, ठीक है। इट्स एक्रोसोम रप्चर्स, रिलीजेस एंजाइम, करेक्ट, ब्रेकिंग एंजाइम जोनालाइसिन उसको ब्रेकिंग एंजाइम, ठीक है। दिस causes the egg to form a cone. Look at the shape. And this is called fertilization cone. The egg membrane will develop a cone, which is known as fertilization cone or the cone of reception. ठीक है? Is that clear? The sperm head comes in contact with this cone. It causes depolarization, activation होगा, membrane activate हो गई, and both plasma membrane dissolve and they fuse. The sperm nucleus, centriole enter the egg. कौन के अंदर से कौन कौन जा सकता है? स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, बाकी कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। सी, अब देखो, सी द एक्रोसोमल रिएक्शन। टच, रिलीज, रप्चर हुआ एक्रोसोम, रिलीज हुआ केमिकल, अंदर एंट्री मिल गई, जोना इज डिसॉल्व, यस, ये देखिए अब फ्यूज हो, यहाँ पे देखिए हेड अंदर है, थोड़ा सा डिटेल में देखिए, थोड़ा मैं एनलार्ज कर दे। सी, अभी आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा है। कॉर्टिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप देख लीजिए। टच, एक्रोसोम एक्टिवेट हुआ, करेक्ट, एक्रोसोम लाइसिन एंजाइम रिलीज हो गए, अंदर एंट्री मिल गई, ये देखिए हेड अंदर चला, स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल, ये दिख रहा है आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जिनके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ, करेक्ट, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। नाउ सी दे हैव रिलीज्ड केमिकल्स, जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज हो जाता है केमिकल रिलीज हो जाते हैं एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स इम्परमिएबल, तो कोई दूसरा स्पर्म नहीं आ सकता। देखिए पहले मेम्ब्रेन थी रिसीविंग, अब एक्रोसोम कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ, देखो वो रिसीविंग प्रोटीन्स के ऊपर क्या आ गया, केमिकल, किसने भेजा, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, और एक मेम्ब्रेन बन जाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। देखिए ये रहा आपका कोन, द फर्टिलाइजेशन कोन, ये देखिए अप्रोच, डिसॉल्व, इनसाइड, ये कोन है, लुक एट, ये देखिए, कैन यू सी द कोन नाउ, ये रहा, ठीक है, फाइन, ओके क्लास। ये सारे डायग्राम नहीं है बुक में, मैं बुक का डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ठीक है। नाउ एज सून एज द स्पर्म टचेस, अभी फिर से वही बात हो गई, क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, करेक्ट, वो एक्टिवेट होके क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट द विटिलाइन मेम्ब्रेन इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड डीएक्टिवेट द स्पर्म रिसेप्टर व्हिच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। एक एग को 2-3 नहीं फ्यूज करना है, सो देयर इज नो पॉलीस्पर्मी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, नो फर्दर एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म, ठीक है, इज इट क्लियर। आप देखिए क्लास, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नीचे देखिए, ये स्पर्म आ रहे हैं, बराबर है, आप देखिए इसको मिल गई एंट्री, ये बात, बाकी के दोनों नहीं आ सकते, क्यों, ये देखिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने रिलीज किया है केमिकल, Which chemical? these are cortical granule called cortisones, it is known as cortisones। cortisones में बहुत सारा मिनरल होता है, कैल्शियम पोटेशियम आयन होते हैं जो उसको ब्लॉक कर देते हैं मेम्ब्रेन, उसका डीपोलराइजेशन रुका देते,
तो यहाँ पे देखो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, अब वो रिसीविंग है ना, अब वो रिसेप्टर हमने डिस्ट्रॉय कर दी और वहां पे वो केमिकल आ गया जो रिसीव नहीं कर, गेटिंग इट? यस, ये देखिए, ये ज्यादा क्लियर दिख, ये आ गया स्पर्म अंदर, ये देखिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आ गए और ये देखिए रिसेप्टर चले गए, पहले रिसेप्टर थे इधर, एंट्री मिल गई, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज, कॉर्टिकल रिएक्शन देखो, और ये बन जाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विदाउट रिसेप्टर। देखिए स्पर्म एग फ्यूजन, डीपोलराइजेशन, एंट्री मिल गई, करेक्ट। इमीडिएटली क्या बनाना है हमको, एग मेम्ब्रेन, कैसे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज, कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड क्या बन गया, ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्म। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगेन आई रिपीट क्लास, ये सारे डायग्राम नहीं है आपको, बट रिएक्शन ऐसा ही लिखा हुआ पूरा। अब क्योंकि स्पर्म आ ही गया है तो अब सेकेंडरी oocyte को एग में चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म न्यूक्लियस अंदर एंटर कर चुका है, तो एग भी तो कुछ तैयारी करेगा ना, करेक्ट। एग को भी तो, एग वाज वेटिंग फॉर स्पर्म, सो नाउ ओके लेट्स वर्क। सो ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन वाज इन मेटाफेज 2, हमने लिखा था ना अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, करेक्ट। Now when there is contact with the sperm, it gets activated and completes the meiosis. Meiosis 2 complete, और उसको बोलते हैं ट्रू ओवम। अभी तक हम जिसको ओवम बोल रहे थे वो सेकेंडरी oocyte चल रहा था, करेक्ट। अभी तक हम जिसको ओवम बोल रहे थे वो सेकेंडरी oocyte था, अब एक्चुअली आया ट्रू ओवम रेडी, और सेकेंड पोलर बॉडी बन गई है। अभी तक कितनी पोलर बॉडी थी, एक, अभी 2 दिखेगी, और एग का न्यूक्लियस जिसको हम क्या बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल, वो चेंज होके बन जाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब देखो, ये देखिए, सी एकदम क्लियरली 2 पोलर बॉडी दिखाई दे रही है हमें, बराबर है। ये देख के स्पर्म की एंट्री हो गई है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ चुका है, ओवम का प्रो न्यूक्लियस रेडी है, बस अब वो फ्यूज होने वाला। सो नाउ आई कैन कॉल दिस एज ओवम ओनली आफ्टर द एग न्यूक्लियस and the sperm nucleus are in the same cell, and you can see 2 polar bodies. Till now we have been drawing only 1, correct, and this is zygote coming into picture. ये दोनों फ्यूज होने वाले हैं, ठीक है, समझा? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, करेक्ट। सो द कवरिंग ऑफ मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियर degenerates and they pair, they join forming the synkaryon, and this process is called syngamy or karyogamy. What is the process called? Syngamy. Syng matlab fuse, gamy matlab gametes, correct. And what is the result? Zygote, ready हो गया zygote, ठीक है। अब मुझे स्पर्म से क्या मिला, सेंट्रियोल, क्योंकि एग के पास तो था नहीं ना, so it has received centriole, it helps in forming spindle fiber, and the zygote will start dividing by the process called cleavage, ये देखिए 23, 23, 46, ये इसको बोलते हैं zygote। Sperm 23, egg 23, N, 2N, correct? Yes, correct. Caryo मतलब न्यूक्लियस, carrion मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। Should I read your charts? Ma'am, what if polyspermy occurs? No, it cannot occur. Suppose कुछ एरर होता है तो that zygote will not be formed, it will die. हमारे एग के पास एबिलिटी नहीं है 2 स्पर्म से फ्यूज होने की, it will die. The whole zygote, that structure will die. Okay?
What is carrier? It is new. Carrier. Sing carry on. Prokaryotic. Blastomer अभी आएगा. Don't worry about it. वहां पे चिंता मत कीजिए, अभी टर्म आएगा. ठीक है. तो हमने क्या कंप्लीट किया? फर्टिलाइजेशन. क्या वो बहुत जरूरी था? तो देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. Was it very, very important? So let's see, was it important? Yes. It completes oogenesis. जब फर्टिलाइज हुआ तब जाके क्या बना? ओवम. तब तक वो ओवम भी नहीं था क्लास, सेकेंडरी oocyte ही था ना. मतलब हर सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं बनता. करेक्ट. हर सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं बनता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हर एक को स्पर्म नहीं मिलता. इज दैट क्लियर? सेकेंड, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर अभी आपने देखा, हम 2n हो गए 46 इज रिस्टोर्ड. ठीक है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी. द प्रोसेस, जस्ट अ मिनट क्लास, 1 minute. नहीं क्लास, मैंने ही ऑडियो बंद किया था. आई एम सो सॉरी. ओके, देयर वाज सम, आई वांटेड टू कम्युनिकेट. ओके, ठीक है. आई एम गेटिंग बैक टू यू, सो सॉरी फॉर दिस. नाउ क्लास, यू कैन सी योर, एम आई ऑडिबल? यस मैम. Yes. ठीक. ठीक. ओके. तो यहाँ पे डिप्लॉयड हम 2n हो गए थे, जाइगोट रेडी हो गया था, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई. ओवम को सेंट्रियोल मिल गया जो उसके पास बिल्कुल नहीं था. सो नाउ इट कैन डिवाइड, क्योंकि जाइगोट को भी डिवाइड होके ग्रो होना है ना, तो डिवाइड होने के लिए यू नीड सेंट्रियोल. ठीक है. फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट. कितने पेरेंट थे? 2. तो वी हैव इंट्रोड्यूस वेरिएशन. When you fuse 2 chromosomes from different parent, it will allow variation and which will lead to evolution. Plus, अगर ये फीमेल एग है तो मेल से स्पर्म Y भी आ सकता है, X भी. करेक्ट. If Y came, this is male. If X came, it will be the daughter. So the sex of the offspring is determined. You determine the sex of the offspring only after fertilization. ठीक है. Tell me, significance of fertilization. It completes oogenesis. Diploid number is restored. Centrioles are received by the egg so that it can divide ahead. It introduces variation. Variation will lead to evolution and sex of the offspring is fixed. X और Y फ्यूज हुआ है तो सन है, और X और X हुआ है तो डॉटर. करेक्ट. दिस वी नो. करेक्ट. इज दैट क्लियर? यस. लेट्स मूव अहेड. अब आएगा डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, विच इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, विच इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है क्लास. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आप जाइगोट से आगे बढ़ो. सो जाइगोट नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग. प्लीज बाय हार्ट द वर्ड क्लीवेज. तो क्लीवेज डिवीजन है, एक स्पेशल टाइप का डिवीजन विच इज माइटोसिस ओनली. तो फिर उसको क्लीवेज क्यों बोल? सो क्लास, इफ आई टेक सपोज अ एप्पल and divide it 1 to 2, 2 to 4, 6, 8, correct, 12, 16 pieces हो गए छोटे छोटे. ये small pieces. Has the size increased? No. So cleavage is like that. The zygote will divide and divide and form many
स्मॉल सेल्स, बट ओवरऑल साइज इंक्रीज नहीं होने वाला, इसीलिए उसको क्लीवेज बोलते। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इज गोइंग टू इंक्रीज, नॉट द साइज। अभी हम करने वाले उसको। प्रोसेस माइटोसिस ही, पर ग्रोथ नहीं, देयर इज नो ग्रोथ। ठीक है, जब वो डिवाइड हो के बहुत ज्यादा सेल बन जाते तो इट रीचेज अ सेकेंड स्टेज कॉल्ड ब्लास्टूला। इट रीचेज अ सेकेंड स्टेज कॉल्ड ब्लास्टूला। ठीक है, इज दैट क्लियर? देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ। और ये जो न्यू सेल्स बने हैं बिकॉज ऑफ डिवीजन, दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था अभी अभी, करेक्ट। ये जाइगोट है, पर ये जो छोटे सेल्स बने वो क्या है? दे आर ब्लास्टोमियर्स। ठीक है क्लास, इज दैट क्लियर? यस, लुक हियर, सिंस देयर इज नो ग्रोथ फेज इन बिटवीन, क्लीवेज के बीच में ग्रोथ नहीं होती, ऐसे ग्रो नहीं हो रहे हम, सो द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर विल रिड्यूस। देखिए ये दो बड़े ब्लास्टोमियर फिर से डिवाइड हुए, छोटे होते जा रहे हैं ना, फिर से डिवाइड हुए और छोटे होते जा रहे हैं, करेक्ट क्लास? तो उनका साइज रिड्यूस होता है बट नंबर इंक्रीज। साइज रिड्यूसेस बट नंबर इंक्रीजेस, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो क्लीवेज फास्ट होती जाती, फास्ट होती जाती। देयर इज रैपिड सेल डिवीजन, more amount of DNA is formed, lots of oxygen is used. This 2, अभी 2 से 4 और जल्दी हो, 4 से 6, 8 fast, because it is rapid, it is going to use more and more oxygen. अब आप पहले क्लीवेज देखिए, ये देखिए, ये oocyte नॉट फर्टिलाइज्ड, ये स्पर्म आ गया है, ये हो गया जाइगोट। ठीक, अब चलते हैं डिवीजन में। ये दिख रहा है 2 सेल, कितने आवर में? विद इन अ डे। फर्टिलाइजेशन के 30 आवर में आपका फर्स्ट क्लीवेज हो गया 2। ठीक है, लेट्स मूव। फर्टिलाइजेशन के 60 आवर्स सेकेंड क्लीवेज भी हो गया, 2 से 4 सेल। आर वी इंक्रीजिंग इन साइज? नो। कैन यू सी देयर इज अ कवरिंग, जोना पेल्यूसिडा, वो है अभी भी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी द 8 क्लीवेज 70 आवर्स में रेडी हो जाता है, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे 8। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है हमें। लेट्स लुक, अभी भी साइज में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। ये देख, आई जस्ट पुश इट अप, यहाँ पे you can see 16 to 32, very important stage. Now how is the zygote looking? It looks like a bunch of cell like this. ठीक है, ये शेप मलबरी ट्री के फ्रूट का हो, and it is known as मोरियूला। 4th डे तक आप यहाँ पे आ गए, फर्टिलाइजेशन के बाद का 4th डे। ठीक है, तो कितने सेल स्टेज को मोरियूला बोलते हैं? प्लीज बाया 16 to 32, पर अभी भी ग्रोथ नहीं हुई है। सोना पेल्यूसिडा उधर ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ शुरू होगी। आप देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत बढ़ गया है, यू कैन सी टू मेनी सेल, अंदर एक कैविटी भी आने वाली है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टूला। पर फिलहाल हम ब्लास्टूला पे नहीं जा रहे, ओके, उसको आराम से देखेंगे। आप मोरियूला तक पूरा देखिए, look at the stages 2 4 8 मोरियूला 16 to 32 सेल। 32 के आप जैसे ऊपर जाते हैं आप क्या बनने लगते हो? ब्लास्टूला। ठीक है, लेकिन ब्लास्टूला हम डिटेल में करने वाले, फिलहाल आप मोरियूला तक देखिए। सी द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, होलोब्लास्टिक, अंडरस्टैंड, होलोब्लास्टिक मतलब ऐसे पूरा कट होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे, ओके। मेरिडोनियल थ्रू द रेडियस,
इट इज रेडियल. लुक एट द वर्ड. मेरिडियन होता है ना, जैसे हमारा इक्वेटर होता है. ओके, मेरिडोनियल, इक्वेटोरियल, करेक्ट. सो एस, सपोज यहाँ से क्रॉस तो भी पूरा होगा. ये देखिए पूरा फुल. सो बाय हार्ट द वर्ड holoblastic, radial, very important word coming. Indeterminate. Indeterminate means we don't know ये जो सेल्स बने हैं इसमें से कौन सा सेल हार्ट बनाएगा, कौन सा ब्रेन बनाएगा और कौन सा किडनी बनाएगा, वो अभी तक हमें पता नहीं. ब्लास्टोमियर क्या बनने वाला है, उसका क्या होगा, द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर is not yet determined. Is not. ठीक है. In human cleavages, holoblastic, longitudinal, meridional, equatorial, horizontal. आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पूरी करनी. ठीक है. Yes, it has a system. It follows some rules. ठीक है. Now look here. देखिए ये actual cleavage देखिए. एक्चुअल जाइगोट, ये ह्यूमन ओवम एक्चुअल दिख रहा है. दिख रही है आपको फर्स्ट क्लीवेज. फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडोनियल. ये देखिए बीच में से 30 आवर्स में विद इन द फर्स्ट डे इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर 1 and 2. करेक्ट. आपको एक दिखेगा थोड़ा सा लार्जर, ये थोड़ा सा स्मॉलर, बहुत ही माइनर फर्क. ठीक है. लेट्स लुक एट द सेकंड क्लीवेज. 2 to 4. ये देखिए है ना. बट नेचुरली इट विल बी लॉन्जिट्यूडनल बट एट राइट एंगल. अगर ये ऐसा बना है तो दूसरा ऐसा कट करना पड़ेगा ना. सो लॉन्जिट्यूडनल बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट वन. अकर 30 आवर आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, मतलब 60 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. करेक्ट. इट इज थर्ड इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे होना है. करेक्ट. एक सेल बनना है. ठीक है. एज द क्लीवेज इज गोइंग ऑन, द यंग एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से डिवाइड होते होते आगे बढ़ रहा है. किसकी तरफ बढ़ रहा है, किसकी तरफ, यूट्रस. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस. सो वेयर डिड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? इन फेलोपियन ट्यूब. और क्लीवेज भी वहीं से शुरू हो जाए. आप वेटिंग में नहीं हो. 4 to 8 ये सब स्टार्ट. ठीक है. मोड्यूला भी बन जाए. एंड बट इट इज मूविंग. द एग इज पुश्ड बाय सीलियास इन द फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस. टुवर्ड्स द यूट्रस. ये देखिए ओवरऑल देख लीजिए. 2, 4, 8, 16 to 32. करेक्ट. मोड्यूला. इसके आगे वाला मैंने रुका है क्योंकि वो ब्लास्टुला है ना, तो मैंने आगे का इमेज लिया नहीं. हम यहाँ पे आ गए. ठीक है. इज इट वेरी क्लियर क्लास? 1 minute. ठीक. ओके. See, by the end of 4th day, I'll stop on this class. Okay. 4th day में आप कितने सेल के हो जाते हैं? 16 to 32, and you look like mulberry fruit. Mulberry is a tree जिसको silkworm उस पे ग्रो होता है बहुत ज्यादा. ठीक है. And what it does, it becomes morula. देखिए, see the morula actually. ठीक है. The morula shows 2 types of cell जिसमें हम कल जाए. ठीक है. So I'm stopping here for today class. Okay. Just coming back to you. Okay class. So you saw fertilization, acrosome reaction. टेक्स्ट बुक के डायग्राम देखना थोड़े से अच्छे नहीं है, पर अच्छे नहीं है तो मतलब पूछेंगे भी, है ना. इट्स वेरी सिंपल. इफ दे आर नॉट गिविंग इट क्लियरली दे विल नॉट आस्क यू टू ड्रॉ. एंड देन you have to go to the cleavage, morula. morula तक आज, फिर हम कल blastula, gastrula कर लेंगे. ठीक है. Okay class. Thank you for today. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am.